صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ حضرات، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور اس کا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ دنیا میں بے شمار نعمتیں اس نے پیدا کی، انسانوں کو اس نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، مگر ایمان وہ عظیم نعمت اور وہ عظیم سرمایہ ہے کہ جو سب کو اس نے عطا نہیں کیا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں ایک سروے کے مطابق تقریباً 8.25 ارب انسان آباد ہیں۔ پوری دنیا کے اندر 8.25 ارب کی تعداد میں انسان پائے جاتے ہیں، اور 8.25 ارب کی اس آبادی میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کا انکار کرتے ہیں۔ تقریباً 6 ارب آبادی دنیا کی اس وقت ایسی ہے جو ہمارے پیغمبر کا کلمہ نہیں پڑھتی ہے، رسول پاک کا انکار کرتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں 6 ارب آبادی آپ کے مذہب کی اور آپ کے ایمان کی دشمن بنی ہوئی ہے، لیکن نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ اے آبرود گنگا، وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے، جب کارواں ہمارا کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ تقریباً 6 ارب انسان وہ ہیں جو رسول پاک کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، اور یہ سب چاہتے ہیں کہ نور الہی کو، شمع خداوندی کو اپنے منہ کی پھوکوں سے بجھا دیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جس نور کو مکمل کرنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے فنا نہیں کر سکتی ہے۔ 6 ارب آبادی ان کی جو رسول پاک کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، اور 2.25 ارب آبادی دنیا میں ان کی ہے جو ہمارے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں پر مشتمل ہے۔ 2.25 ارب آبادی کلمہ پڑھنے والوں کی ہے، مگر اس 2.25 ارب آبادی کا بھی حال آپ پر اچھی طرح سے واضح ہے کہ کلمہ پڑھنے والے اتنی بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود اگر آپ سروے کریں تو ان میں سے بھی کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کا کلمہ پڑھنا نہ پڑھنا دونوں کھلی ہوئی بات ہے۔ سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم پر نکتہ چینی کر کے کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ ہر بندے مومن یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کے اندر نہ کوئی تبدیلی ہوئی، نہ کوئی تحریف ہوئی، اس کے زبر زیر میں بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ 1400 سال سے یہ قرآن جس طرح سے محفوظ ہے انشاءاللہ صبح قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں مگر میرا یہ بھی عقیدہ ہے کہ قرآن میں کمی اور پیشی کر دی گئی، تو اس کا انجام کیا ہوگا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا اپنے آنکھوں سے دیکھ لے گی۔ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی دنیا میں وہ ذلت کے گڈھے میں ڈال دیا جائے گا۔ عزت کی لاکھ بلندیاں اسے مل گئی ہو، لیکن قرآن کا اگر مذاق کلمہ پڑھنے والا اڑائے گا تو عزت کی بلندی سے ذلت کے گڈھے میں جب ڈالا جائے گا تو تمہارا دشمن بھی تمہارے منہ پر پیشاب کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے کہ 1400 سال سے پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہے۔
वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली, अगर तुम्हें शक है कि ये कुरान खुदा का कलाम नहीं है तो एक छोटी सूरत भी तुम इसके मुकाबले में लेकर के आओ। 1400 साल हो गए मगर पूरी दुनिया का कोई दानिश्वर, दुनिया का कोई अदीब, दुनिया का कोई शायर, दुनिया का कोई खतीब, दुनिया का कोई मुकर्रिर, दुनिया का कोई प्रोफेसर आज तक कुरान करीम के इस चैलेंज को कबूल करने की जुर्रत नहीं कर सका। कुरान ऐलान करता है ला मुबद्दिल लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलमात में कोई तब्दीली नहीं हो सकती है। मगर कलमा पढ़ने वालों का एक तबका इसी हिंदुस्तान में पाया जाता है जो कहता है कि कुरान 40 पारे थे, 10 पारे खुलफा ने खत्म कर दिए। मुझे बताइए जिस कलमा पढ़ने वाले का ऐसा अकीदा हो क्या वो मुसलमान हो सकता है? जब कुरान के जबर जेर में तब्दीली का एतकाद करने वाला मुसलमान नहीं रह सकता तो अगर कोई कहे कि कुरान के 10 पारे बदल दिए गए हैं तो भला कैसे मुसलमान हो सकता है? पता ये चला कि हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नहीं हो सकता है। आज की क्या बात करते हैं, रसूल पाक के जमाने में भी बहुत सारे कलमा पढ़ने वाले मौजूद थे, उनका जिक्र कुरान ने खुद किया है। वमिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन, कुछ ऐसे लोग हैं जो दावा करते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, आखिरत पर ईमान रखते हैं, मगर कुरान उनके बारे में ऐलान करता है व मा हुम बिमुमिनीन, ये मोमिन नहीं है। इसका मतलब है जब नबी के अहदे मुबारक में हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नहीं तो इस दौर में कैसे भला हर कलमा पढ़ने वाले को हम मुसलमान मान सकते हैं? चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। मुझे याद आ रहा है आज से तकरीबन 7 या 8 साल पहले इसी नानपारा की सरजमीन पर एक अजीम इजलास हुआ था जब किसी ने चैलेंज किया था रसूल की अजमत और आपकी नामूस पर धब्बा लगाने की नापाक कोशिश की थी। आपके इसी शहर के नौजवानों ने ऐसा अजीमुश्शान इजलास किया था जिसमें सुल्तानुल मुनाज़िरीन हुजूर मुहद्दिस कबीर जलवा फरमा थे और भरे मजमे में चैलेंज किया गया था कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमाअत के पेशवा इमाम अहमद रजा का ईमान ऐसा पुख्ता है, ऐसा टनाटन है कि देवबंद के दारुल इफ्ता में भी वो खनकता नजर आ रहा है। आज तक किसी देवबंदी आलिम के अंदर भी ये जुर्रत नहीं हो सकी कि वो इमाम अहमद रजा के ईमान पर सवालिया निशान कायम करे। रफीकान मोहतरम, 2.25 अरब कलमा पढ़ने वालों में एक तबका ऐसा भी पाया जाता है जो कलमा पढ़ने के बावजूद औलिया की शान में गुस्ताखी करता है, अंबिया की शान में गुस्ताखी करता है, खुद खुदा की शान में गुस्ताखी करता है, उलमा की शान में गुस्ताखी करता है। एक तबका इसी हिंदुस्तान में पाया जाता है जो धड़ल्ले से कहता है कि हुजूर आखिरी नबी नहीं है, हुजूर के बाद भी नबी आ सकता है, जिसे कादियानी कहा जाता है, मिर्जाई कहा जाता है। आप सोचते होंगे ऐसे लोग भी क्या पाए जाते हैं? क्या ऐसे लोग भी हिंदुस्तान में पैदा हो गए? शायद आपको अभी खबर नहीं है कि बातिल हुकूमतों के जेरे निगरानी किस तरह से फितने हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपनी लपेट में ले रहे हैं। देखते ही देखते न जाने कितने घरों और न जाने कितनी आबादियों को खुद ये फकीर जानता है कि पहले वो सुन्नी सही अकीदा थे मगर उनमें से कोई राफजी हो गया, उनमें से कोई कादियानी हो गया, उनमें से कोई मिर्जाई हो गया, उनमें से कोई बदअकीदा वहाबी हो गया, कोई देवबंदी हो गया, कोई सुलह कुल्ली हो गया। न जाने कितने तबकों में इस वक्त कलमा पढ़ने वाले बटे हुए हैं। मैं एक मौके पर केरला की तरफ गया, मैंने वहां जाने के बाद मालूम किया यहाँ की मजहबी पोजीशन क्या है, लोग यहाँ के किस नजरियात के हैं। मेरा अपना एक तरीका है, किसी नई जगह पर अगर मेरा जाना होता है तो मैं मालूम करना चाहता हूँ यहाँ कलमा पढ़ने वाले कितनी तादाद में है, उनकी सरगर्मी क्या है, इनके
इनके इदारे कितने हैं, इनकी मस्जिदें कितनी है, इनके यहाँ मज़ारात कितने हैं, मज़ारों पे आने जाने का इनके तखमीना क्या है, ये मैं मालूम करने की कोशिश करता हूँ। इससे पता चलता है कि सुन्नी सही अकीदा कितने हैं, इनकी सरगर्मियां क्या हैं, इनके इदारे कितने हैं, इनकी तबलीगी कामयाबी किस अंदाजे की है। मैंने जब पूछा तो एक साहब ने बताया, हजरत यहाँ पर कादियानी भी रहते हैं, फला फला अकीदे के लोग भी रहते हैं। मैं शहर के होटल में ठहरा हुआ था, रात के 11 बजे थे। मैंने कहा कादियानी और आपके इस हिंदुस्तान में और इस शहर में? कहा जी हजरत, कादियानी यहाँ रहते हैं और 1000 की तादाद में उनके मकानात हैं, उनकी 3 मंजिला मस्जिद है, उनका इदारा है। मैंने कहा वो अपने आप को क्या कहलाते हैं? कहा वो भी अपने आप को मुसलमान ही कहते हैं, नबी का कलमा पढ़ने वाला बताते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अपनी मस्जिदों के ऊपर लिखवाते हैं। मगर वो उनका अकीदा है कि हुजूर आखिरी नबी नहीं है, उनके बाद भी नबी आ सकता है, बल्कि उनका कहना है नबी आ गए। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को उन्होंने नबी मान लिया, फिर उसके खुलफाए के बाद दीगरे पैदा हो रहे हैं। आज भी आप यूट्यूब पर जा करके देखें और सुने तो आपको मालूम होगा पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 150 की तादाद में कादियानी चैनल अपने चैनल के जरिया इस अकीदे को दुनिया में फैला रहे हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी नहीं है, उनके बाद भी नबी आ सकते हैं। हमने जब उनकी किताबों का मुताला किया, उनमें से 2 चंद किताबें मंगवाई। एक किताब आज भी मेरी लाइब्रेरी में मौजूद है जिसका नाम है खातमुन नबीयीन। मैंने जब उस किताब का मुताला किया तो कादियानी अपनी दलील में एक इबारत पेश करता है और उसमें लिखता है कि अगर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने नबी होने का दावा कर लिया और उन्होंने अपनी नबूवत का ऐलान कर दिया तो इसमें कौन से ताज्जुब की बात है। ये तो वही कह रहे हैं जो मौलाना कासिम अली मोहम्मद कासिम नानौतवी दारुल उलूम देवबंद के बानी ने कही है। ये बात तो मौलाना मोहम्मद कासिम ने अपनी किताब में लिखी है। मैंने जब उसका पैराग्राफ पढ़ा तो ये बात समझ में आ गई कि तैयारी तो किया मौलवी कासिम नानौतवी ने, मगर फायदा उठा लिया मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने। अगर मिर्जा पूरी दुनिया के मुसलमानों की नजर में गैर मुस्लिम है तो जिसने इस रास्ते को हमवार किया वो भला मुसलमान कैसे हो सकता है। इसलिए मानना पड़ेगा कि जिसने नबूवत के दरवाजे को खोलने के लिए ये नापाक जसारत की, चाहे वो आलिम कहलाए चाहे वो मुहद्दिस कहलाए, वो सब कुछ हो सकता है मगर मुसलमान नहीं हो सकता। हमारा ये नौजवान ये जब रबीउल अव्वल शरीफ में जुलूस निकालने की कोशिश करता है तो कुछ लोग आवाज उठाते हैं, क्या साहबा ने जुलूस निकाला? क्या साहबा ने खड़े होकर सलाम पढ़ा? क्या साहबा ने मिलादे मुस्तफा किया? लेकिन इधर 2 चंद साल से वहाबियत सऊदिया के अंदर जो नंगा नाच नाच रही है उस पर इनकी जबानें गुंग हैं। ऐ सुन्नियों, तुम भी पूछो जरा, क्या सहाबा ने मदीना शरीफ के इर्द गिर्द में फिल्म खाना खोला था? क्या सहाबा ने वहां पर कैरम बोर्ड के लिए क्लब खुलवाए थे? क्या सहाबा ने या मुस्तफा जान रहमत ने माअज़ल्लाह अरब के मुकद्दस इलाके में अय्याशियों के अड्डे खोले थे? कल तक तो तुम मिलाद को बिदात कह रहे हो, दलील मांगते हो सुन्नियों से कि लाओ दलील, कहां रसूल पाक के सहाबा ने किया? तो जरा तुम ये तो बताओ 1400 साल में किस सहाबी ने अपने इलाके में कैरम बोर्ड के लिए और क्लब खुलवा करके अय्याशी का बाजार गर्म किया है? तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आया? नशीमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। लोग कहते हैं फला तहरीक हमको मार रही है, गलत कहते हैं। ये गलत सोचना है। कोई गैर तहरीक आपको मार नहीं रही है, आपको अपने घर की तहरीक मार रही है। आपके ईमान की बर्बादी के लिए गैर जो कोशिशें कर रहे हैं उसमें वो कम कामयाब हो रहे हैं, अंदर से जो कोशिश हो रही है उसमें उन्हें ज्यादा कामयाबी मिल रही है। आज लोग कहते हैं अब ये इख्तिलाफ की बात नहीं करनी चाहिए, मुत्तहिद होकर रहना चाहिए, ये सुन्नी वहाबी नहीं करना चाहिए। क्या सिर्फ
جب مذہب کی بات آتی ہے تبھی آپ کے ذہن میں اتحاد کی بات آتی ہے. ابھی 2 ہفتہ پہلے اتحاد کی بات کیوں نہیں آئی؟ 2 ہفتہ پہلے آپ نے کیوں نہیں اتحاد کی بات کو یاد کیا؟ 2 ہفتہ پہلے کیوں نہیں آپ نے سوچا کہ یہ متحد ہونے کا وقت ہے؟ یاد رکھیے گا دین کے معاملے میں جو اس طرح کی تحریک چلائے کہ اب اختلاف کی ضرورت نہیں ہے، اتحاد ہونا چاہیے، وہ کان کھول کر کے سن لے. ایمان اور کفر کا اتحاد نہ کل ہوا